In continuation with this chapter, now let's study another topic, that is AC voltage applied to a series LCR circuit. In previous videos, we have studied separately about inductance, capacitance and resistance, and then found the value of instantaneous current and phase relationship between AC voltage and current. Now, here we will study about series LCR circuit. There are two types of circuit we can form, that is in series combination or in parallel combination of LCR circuit. हमारे कोर्स में सीरीज LCR सर्किट है, उसकी हेल्प से हम इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे और फेज रिलेशनशिप फाइंड करेंगे बिटवीन AC वोल्टेज सोर्स एज वेल एज करंट इन अ सर्किट. तो इसमें LCR सर्किट के अंदर L, C और R का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट इज वी कैन कनेक्ट capacitor first, then inductor and then resistor. We can connect resistor first, then capacitor and then inductor. So the order is not important. Important is that it should connected in series. And the application of series LCR circuit is that it is used to tune FM radio at a particular frequency, or to find a particular selective frequency for amplitude modulation or frequency modulation in radio. Now, we can use it in communication engineering as well, and there are so many applications in which we use series LCR circuit. By using series LCR circuit, we can find the value of instantaneous current in two ways. That is, there are two methods to calculate the value of current by series LCR. First method तो है phasor diagram solution. Another is analytical solution. फेजर डायग्राम में हम फेजर के थ्रू करंट की वैल्यू और फेज एंगल फाइंड करते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा है, उससे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. और एनालिटिकल सॉल्यूशन इज दैट इन विच वी डू केयरफुल और सिस्टमैटिक और डेप्थ स्टडी ऑफ एनीथिंग एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड एंगल. इसमें है सिस्टमैटिक स्टडी or careful examination. Now in NCERT both the methods are given, but here for exam point of view we only study about phasor diagram solution. इसको हम स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ ये एग्जाम में आता है बोर्ड में. बट phasor diagram solution has two disadvantages. That is, it gives steady state solution. Secondly, it does not give any information about the initial position of phasor. Does not give initial position of phasor. And only give phase angle between two phasors, two or more than two phasors. So now what is this steady state solution? The general solution which is obtained by connecting series LCR circuit is the sum of two solutions. जो जनरल सॉल्यूशन होता है इसका, it contains
steady state solution as well as transient solution. This is the required solution, transient solution. अब ये दोनों methods क्या हैं? Steady solution is that in which currents will get immediately zero when we will switch off the circuit. तो जैसे ही हमने switch off किया, then current will immediately will be zero, and when we will switch on the circuit, then there is a maximum current which is steady in state will flow through the circuit. तो ये तो हो गई स्टीडी कंडीशन, इसमें जिसमें करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा, एंड इट हैपन्स इन रजिस्टर. करंट ऑफ कर दिया तो करंट ऑफ हो जाएगा, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, और जैसे ही करंट ऑन किया तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा. ट्रांजिएंट सॉल्यूशन के अंदर जो हम पढ़ते हैं इंडक्टर में और कैपेसिटर में, जिसमें on switch by switch of the circuit it takes some time, some finite time to decay or grow. जैसे ही स्विच ऑन होगा तो इंडक्टर में इमिडिएटली करंट की पीक वैल्यू ऑब्टेन नहीं होती. इट टेक्स सम फाइनाइट टाइम टू रीच एट मैक्सिमम, एंड दिस इज नोन एज ग्रोथ. एंड when we switch off the circuit it takes some time to get decay, that is when there will be no current passing through it, that is it has some finite value at फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि फ्रीक्वेंसी जब ज़ीरो है उस पर भी इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है. डिके और ग्रो करने में ये कुछ टाइम लेता है, करंट एकदम से इमिडिएटली ज़ीरो या इमिडिएटली मैक्सिमम नहीं हो जाता. दैट इज़ नोन एज ट्रांजिएंट करंट, एंड द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय दिस इज नोन एज ट्रांजिएंट सॉल्यूशन which is obtained through L and C. And this happened because of a time constant. Time constant for inductor is given as L by R. अगर इसकी वैल्यू स्मॉल होगी तो उतना ही फास्टर डिके और ग्रो होगा सर्किट में, यानी कि उतनी ही जल्दी सर्किट में करंट डिक्रीज हो जाएगा और उतनी ही जल्दी इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट. हमें इसकी स्टडी नहीं करनी है. दैट इंडक्टर हैज़ अ टाइम कांस्टेंट L by R. तो हमें ये पता होना चाहिए बस कि ट्रांजिएंट करंट क्या है, ट्रांजिएंट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, और ये टाइम कांस्टेंट फॉर कैपेसिटर इज RC. इफ इट इज स्मॉल, faster is the growth or decay. Now let's study its circuit diagram as well as now start finding the value of instantaneous current with the help of phasor diagram solution. किसी भी ऑर्डर में हम कनेक्ट करेंगे. रजिस्टर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू I इंटू R. कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज Q by C.
इंडक्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इन मैग्नीट्यूड L di/dt. EMF applied is EM sin omega t, through which AC voltage is V equivalent to Vm sin omega t. And by using KVL, as we know that the algebraic sum of all the AC voltages connected in a circuit is equal to 0, and the voltages applied is equal to the voltage of a AC source, that is इन सब का algebraic sum इसके बराबर होगा IR plus Q by C plus L di/dt equal to V. Give it equation number 1. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L equal to V. This is equation number 2. And now we can draw its phasor diagram, which is consider two coordinate axes. From x-axis and from the origin, a line is originating known as current phasor. This angle is omega t plus phi, and voltage phasor across resistor is making an angle of 0 degree with current phasor. तो हम इसको सेम लेंथ पे इसी पे ही ड्रॉ कर सकते हैं. It gives voltage phasor for resistor, and current से voltage phasor for inductor is making an angle of pi by 2, that is it is ahead of pi by 2 by I. तो pi by 2 ahead है voltage phasor of inductor, और voltage phasor of capacitor is pi by 2 behind of current, that is minus pi by 2. अब इससे हम, ये है VC, KVL को यूज करके हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज फ्रॉम KVL sum of all the voltage phasor is equal to resultant phasor, that is AC voltage source, that is VR plus VC plus VL. Phasor gives resultant phasor of a circuit, and their amplitude is, this is equation number 3, and their amplitude, that is peak value or length of these phasors are VR का हो जाएगा, peak value is VRM. The peak value or amplitude is IMR, and for capacitor it is VCM. Peak value of capacitor is IMC, and C is XC, and VLM is IMXL. Thus we can write that their amplitudes are, IMR is resistance, here XC is capacitive reactance, XL is inductive reactance. यहाँ पे इन सबको हम एक और वर्ड से बोल सकते हैं, वो opposition offered to the flow of AC, that is impedance.
impedance for capacitor, impedance for inductor and impedance for resistor. आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं अभी. तो यहाँ पे इनका हम जो फेज़र डायग्राम हमने ये बनाया है, इससे हम फेज़ रिलेशनशिप निकाल सकते हैं. इससे हम वोल्टेज का रिजल्टेंट फेज़र डायग्राम बनाएंगे अब. सो एक्स एक्सिस this gives resultant voltage phasor, और इससे फाई एंगल पे वोल्टेज फेजर ऑफ रजिस्टर वी आर विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई. और क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर का से कम है, VL को हम यहाँ पे VC से कम ले रहे हैं. दैट इज द सर्किट ऑफ सीरीज LCR सर्किट इज कैपेसिटिव डोमिनेटेड, यानी कि कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंडक्टर. तो हम VC में से VL को माइनस कर देंगे और जो डायरेक्शन होगी इसकी एक सिंगल फेजर की हम दिखाएंगे, तो वो जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है उसकी तरफ होगी. तो यहाँ पे हम इसको बना सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि VL और VC दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं. तो VC माइनस VL इज द एम्पलीट्यूड और इसका फेजर होगा सिंगल फेजर विच इज इक्वल टू VC प्लस VL वेक्टर. अब इस लेंथ के पैरेलल है ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ के पैरेलल है ये. पैरेललोग्राम बना लिया हमने एक. ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. तो यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा VC माइनस VL. So we can write amplitude, that is the maximum value denoted by, this is VR vector and this is VCM minus VL. No vector, इसका एम्पलीट्यूड है VCM माइनस VL. इसका मैग्नीट्यूड भी VCM माइनस VL वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड होगा पीक वैल्यू दैट इज VRM. एंड दिस इज एंगल ओमेगा T एक्स एक्सिस. और इस लेंथ का एम्पलीट्यूड वी कैन राइट VM. इसमें हमने एम्पलीट्यूड और वेक्टर दोनों को डिज़ाइन कर लिया. नाउ वी कैन राइट magnitude of VC plus VL vector is VCM minus VLM, and we also know that it can be written as IR. Here it is IXC and IXL. So we can write IM maximum XC minus XL. Now give it equation number 4, and therefore by Pythagoras theorem this is perpendicular and this is base and hypotenuse. तो हम निकाल सकते हैं इसको. VM इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज VRM स्क्वायर प्लस VCM माइनस VL M स्क्वायर.
Substitute the value of amplitudes. It is equal to Im r square plus Im xc minus Im xl whole square. Or we can write Vm is equal to Im r square प्लस xc माइनस xl. अगर इंडक्टेंस डोमिनेट होता, इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती, तो हम xl माइनस xc लिखते. हर स्टेप पे हम इसी तरीके से करते. यहाँ पे हमने कैपेसिटिव डोमिनेटेड लिया है, तो xc माइनस xl होल स्क्वायर. नाउ बाय दिस वी कैन राइट peak value is equal to Vm by r square plus xc minus xl whole square. Or Im can be written as Vm by z, where z is known as impedance, that is the opposition offered in the flow of AC current by LCR circuit. ये टोटल इम्पीडेंस है. अगर सिर्फ आर के कारण होगा तो हम बोलेंगे इम्पीडेंस बाय आर, इम्पीडेंस बाय सी और इम्पीडेंस बाय एल ओनली. ये पूरा टोटल सर्किट के लिए हम लिख रहे हैं Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर. और नाउ गिव इट इक्वेशन नंबर 5 and this is equation number 6, 7, and also we can write that impedance is equal to Vm upon Im. This is equation number 8. Now here in equation number 5 we can see that if we will divide this by Im, we get impedance in the form of resistance and reactive capacitance and inductive reactance, that is root of r square plus xc minus xl whole square. Now here it is the angle between resistance of AC voltage of resistance and resultant voltage phasor. So we can write or draw it again in the terms of impedance diagram. That is, for the impedance diagram is the resultant of all the resistances as we have studied that phi is the angle between AC voltage across resistor and resultant voltage. So, and here we also know that this VR is along current phasor I. तो यहाँ पे हम this is phi angle perpendicular base hypotenuse. तो पहले कंडीशन ये थी, यहाँ पे this is Vm, hypotenuse is the total length. ये था voltage फेजर, पिछले डायग्राम से कंपेयर करिए. ये थी रिजल्टेंट वोल्टेज एंड इट्स लेंथ इज Vm. इसकी लेंथ, ये जो बेस है, ये था वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर. सो वी कैन राइट इट एज Vrm. एंड दिस लेंथ इज Vcm माइनस Vlm, दैट इज परपेंडिकुलर. नाउ अगर हम इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम I से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू ऑफ करंट. सो दिस विल गिव इम्पीडेंस. इसी इक्वेशन को लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. ये हो जाएगा R एंड दिस इज इक्वल टू XC माइनस XL. And this kind of diagram is known as impedance diagram.
यहाँ पे हमने जो केस कंसिडर किया है इसमें हमने कैपेसिटिव सर्किट को डोमिनेटिंग लिया है, दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज मोर देन इंडक्टेंस. सो दिस इज इम्पीडेंस डायग्राम. Impedance is the opposition offered in the flow of AC current. And now, as we know that this phi is the angle between VR and V, and VR is along current, phasor current, so we can write that as Z is equivalent to R square plus XL minus XC whole square. And phi is the angle between AC voltage across resistor and resultant voltage. Therefore, tan phi is equal to XC minus XL by R. और क्योंकि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ IM, पीक वैल्यू ऑफ करंट निकाल ली. सो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कैन बी रिटन एज IM is equivalent to VM by R square plus XC minus XL whole square. And I is equal to IM sin omega t प्लस phi. हमने जब रेजिस्टर का केस पढ़ा था तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज करंट से सेम एंगल पे थी. इंडक्टर के केस में करंट π/2 बिहाइंड थी, दैट इज ओमेगा टी माइनस 5. तो ये हमारी इक्वेशन है जनरल. यहाँ पे हमने जब फाई एंगल, इस फेज एंगल को माइनस लिया, उस केस में, इंडक्टर के केस में π/2 इज पॉजिटिव, π/2 इज पॉजिटिव, और therefore we can write it as ओमेगा टी माइनस 5. और जब हम कैपेसिटर का केस पढ़ रहे हैं तो उसमें π/2 होता है नेगेटिव, यानी कि वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड बाय π/2 करंट, π/2. सो साइन ओमेगा टी we can write it as sin omega t plus phi. It means for case of a capacitor, phi is negative. इसी की वजह से हम इसको यहाँ पे नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, यानी कि अब हमारी जो इक्वेशन हो गई करंट की वो हो जाएगी I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई फॉर द केस व्हेन कैपेसिटिव इज डोमिनेटिंग. तो जब कैपेसिटर डोमिनेटिंग है तो होगी इक्वेशन आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई. एक हमने फेज एंगल निकाल लिया फॉर कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू XC माइनस XL बाय R, और इंस्टेंटेनियस करंट इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई बिकॉज हेयर फाई इज नेगेटिव फॉर कैपेसिटेंस dominating in it. Now here we can see, or you can remember it also, that when phi is negative we draw it in fourth quadrant, and when phi is positive we can draw it in first quadrant. तो एक मैंने आपको इस तरीके से इसको याद करने का तरीका बताया था कि हम जब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे फेजर्स ड्रॉ कर रहे हैं, voltage is ahead, inductor voltage is ahead by π/2. तो यहाँ पे करंट है I और ये है कैपेसिटर. ये तीन फेजर्स हमने ड्रॉ कर लिए. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि
वोल्टेज आगे है करंट से, तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड एंड वी आर मूविंग, करंट इज लैगिंग बिहाइंड, वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, सो वी कैन टेक इट एज पॉजिटिव। इंडक्टर के केस में हमने पॉजिटिव लिया। और करंट इज लैगिंग, करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज by pi by 2. So here it is minus pi by 2. Here it is plus pi by 2. जब हम कैपेसिटिव डोमिनेटिंग केस पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास में XC माइनस XL बाई आर, टेन फाई निकालेंगे हम, तो टेन फाई इज XC माइनस XL बाई आर। अब ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो टेन फाई आएगा पॉजिटिव। दैट्स वाई हेयर वी आर ड्रॉइंग इट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस इतना सा ही डिफरेंस है। आपको ये रिमेंबर, ये ध्यान में रखना है कि आप किसको पकड़ के चल रहे हैं। आप इसको लेके चल रहे हैं करंट फेजर को, करंट फेजर को आप इस तरफ मूव करा रहे हैं, यानी कि करंट इज अहेड ऑफ वी एंड हेयर करंट इज लेगिंग बिहाइंड ऑफ वी। तो clockwise is negative, anti-clockwise is positive, and here in this case, as we are studying that this phase angle is in the case of capacitive dominating circuit, when this is more then angle is positive. That's why here we are drawing it in first quadrant phi. And also you can remember by this thing that अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं कैपेसिटिव डोमिनेटिंग सर्किट का, दैट इज व्हेन XL इज ग्रेटर, व्हेन XC इज ग्रेटर देन XL, इस केस में जो फेजर डायग्राम होगा उसमें I लीड कर रहा है। सो वी कैन ड्रॉ वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर like this phi और ये ओमेगा टी। तो जब हमें कैपेसिटिव डोमिनेटिव के लिए बनाना होगा फेजर डायग्राम, दैट इज XC इज ग्रेटर देन XL, सो वी विल राइट फेजर डायग्राम फॉर XC ग्रेटर देन XL, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई। एंड ये कैसे पता चलेगा कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, उसके लिए एक ये ट्रिक है कि जब आप ये ग्राफ बनाते हैं फॉर वोल्टेज एंड करंट, ओमेगा टी एंड V एंड I, अगर हम इस तरीके से वोल्टेज को ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और इस केस में करंट लीड कर रहा है, देयरफॉर इट्स पीक वैल्यू, एंड देन एट 1/4 इट विल बिकम 0। उसके बाद इस तरीके से, और ये 3T/4। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाली वैल्यू, ये इसको पहली चीज यहाँ पे ये पीक वैल्यू पे है। जब करंट पीक पे है तो वोल्टेज 0 है, करंट 0, वोल्टेज इज एट पीक, करंट इज एट पीक, वोल्टेज इज एट 0, करंट 0, वोल्टेज एट पीक। तो इससे हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फेज एंगल है वो है π/2। और ये हम कैसे पता करेंगे कि कौन लैग कर रहा है और कौन लीड कर रहा है? तो अगर जो इन क्वांटिटीज़ में से जो सबसे पहले 0 पे रीच हो जाएगा वो वैल्यू लीड कर रही है। यहाँ हम देख सकते हैं ये पीक पे है, ये पहले 0 हो गया, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और 0 से उसके बाद ये यहाँ पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पे ये लीड कर रहा है। सो वी कैन से दैट द करंट इज लीडिंग बाय π/2।
from voltage. So it is V, it is I. तो जो पहले the quantity which decreases first is said to be leading. When XL is greater than XC, it means circuit is inductive dominated. यानी कि यहाँ पे अब XL की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू कैपेसिटेंस, इंडक्टिव डोमिनेटेड. इट मीन्स यहाँ पे अब वोल्टेज अहेड होगी एज दैट ऑफ करंट, यानी कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ये लैग करेगी, ये ज़ीरो पे आएगी, देन मैक्सिमम एंड देन इन दिस वे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज़ीरो है, तो जो पहले ज़ीरो पे आएगा ये स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो पे, ये अब ज़ीरो पे आ रहा है, ये यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है. सो इट डिक्रीजेस फर्स्ट, सो इट इज़ लीडिंग एंड देन आफ्टर इट विल डिक्रीज. तो इसी तरीके से हम इसका फेज़र डायग्राम और टाइम ग्राफ बना सकते हैं. और अगर XL XC के इक्वल होता है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. दिस वी विल स्टडी in the next video and about resonance.